بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر کے بارے میں بتاتا چلوں آپ کو۔ جنگ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہونے والی سب سے پہلی اور بڑی جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر کا ذکر قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر ہوا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 13 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 123 تا 127 میں بھی ذکر ہے۔ سورہ انفال آیت 6 تا 12 میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 تا 44 میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سورہ انفال کی آیت 63 تا 68 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور اسی کے علاوہ قرآن کی متعدد آیات میں اس کی طرف اشارے بھی ہیں۔ تو اس قرآنی کے اندر ذکر کی ہوئی جنگ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ مسلمانوں کو کفار نے اتنا تنگ کیا کہ مسلمان بالآخر اپنا وطن مکہ چھوڑ کر بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ آ پہنچے، اور کفار کی یہ سازشیں اور کفار کی یہ چالاکیاں اور کفار کی یہ ہٹ درمیاں چلتی رہیں، اور انہوں نے مکے سے نکلنے کے بعد بھی مسلمانوں کو نہیں چھوڑا، اور مدینہ میں بھی آ کر، اور اسی طریقے سے حبشہ کے اندر جب ہجرت کر گئے تھے وہاں پہ بھی آ کر مسلمانوں کو تنگ ہی کر رہے تھے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے 2 ہجری میں مسلمانوں کو اجازت جہاد دی، اور اجازت جہاد پا کر مسلمانوں کو ویسے ہی ایمان کا مزہ چکھا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے فضائل بھی ان کو بتائے، تو وہ تیار ہو گئے۔ کیونکہ مسلمانوں کو کفار نے بے انتہا تنگ کیا، کسی کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، کسی کے ٹکڑے کیے گئے، مرد تو مرد پر عورتوں تک کو نہ چھوڑا، ان کے ساتھ بھی زیادتیاں، ان کے ساتھ بھی قتل و غارت کی انہوں نے۔ بالآخر مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بدر کے مقام پر آ کر جنگ کی ابتدا کی۔ مسلمانوں کی طرف سے قیادت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کفار کی طرف سے 2 لشکر تھے۔ ایک لشکر تجارتی لشکر تھا جو ابو سفیان کی قیادت میں تھا، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے ٹائم پہ مشرف با اسلام کیا، اور اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہ تھے، تو تجارتی قافلہ جو کافروں کا تھا اس کی قیادت حضرت ابو سفیان فرما رہے تھے، اور دوسرا ایک جنگی ان کا قافلہ تھا، اس کی قیادت کرنے والے ابو جہل تھے۔ تو یہ دونوں سردار مکے کے کفار کی طرف سے تھے، اور یہاں سے مسلمانوں کا لشکر۔ مسلمانوں کی کل تعداد اس جنگ کے اندر 313 تھی۔ 2 گھوڑے تھے جس کے اوپر باری باری چڑھ کر بدر کے میدان تک پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ 70 اونٹ تھے مسلمانوں کے ساتھ، اور چند ایک تلواریں تھیں۔ بے سر و سامانی کی حالت میں جہاد کے لیے آ کھڑے ہوئے۔ اس طریقے سے کفار کی طرف سے 1000 کا لشکر تھا، اور بڑی تعداد میں گھوڑے تھے، اور بڑی تعداد میں ہتھیار بھی تھے۔ اور کفار نے آتے ہی اپنے لیے اچھی جگہ کا چناؤ کیا، جہاں پہ پانی کا کنواں بھی تھا، اور جہاں پہ مٹی وغیرہ تھی، یعنی بندہ جم کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ پر مسلمان جب پہنچے تو ان کے لیے جو جگہ بچی تھی وہاں پہ نہ پانی کا کنواں تھا اور نہ ہی مٹی تھی، بلکہ ریتی کا علاقہ تھا۔ پر مسلمان بے سر و سامانی میں کم تعداد میں پر قیادت کرنے والے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور معاونت اور مدد کرنے والی خود اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ اللہ نے اس مقام پر بارش فرما دی، اور بارش کی وجہ سے سالہ پلہ کا پلہ تبدیل ہو گیا، حالت تبدیل ہو گئی۔ جو مٹی والا علاقہ کفار جہاں پہ کھڑے تھے وہ کیچڑ بن گیا، جو مسلمان ریتی کے علاقے میں کھڑے تھے وہ ریت جم گئی پانی کی وجہ سے، اور وہاں پہ جو کھڈے وغیرہ اس میں پانی رک گیا، پانی پینے کا بھی میسر ہو گیا۔ بالآخر جنگ شروع ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کی ترغیب دی، اور ولولہ انگیز
तकारीर फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में मुसलमानों को जंग और जिहाद के लिए कुरानी आयात और मुसलमानों से अहद व पैमान किया, मुआहदा तय पाया। उसके बाद फरमाया, लोगों मुझे मशवरा दो। मशवरा लेने पर पहले हज़रत अबू बकर फिर हज़रत उमर खड़े हुए और नहायत खूबसूरती के साथ इज़हार जानिसारी फरमाया और अपने वफादारी का यकीन दिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया तो उस पर मिक़दाद बिन अस्वद खड़े हुए और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया है, आपको हुक्म दिया, इसको अंजाम दीजिए। हम आपके साथ हैं। खुदा की कसम, हम बनी इसराइल की तरह हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि मूसा तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम तो यही बैठे हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप और आपका परवरदिगार जिहाद और किताल करें, हम भी आपके साथ जिहाद और किताल करते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमक उठा। और इसी तरीके से हज़रत साद बिन मुआज़ खड़े हुए, उन्होंने भी इसी तरीके से ईमान अफरोज और तस्दीकी जो है तकरीर फरमाई। इसी तरीके से छोटे उम्र के नौउम्र बच्चों ने भी शौक़ जिहाद ज़ाहिर किया। इसी तरीके से बड़ों ने, बूढ़ों ने, नौजवानों ने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों ने बहुत ही अहसन तरीके से अपनी खूबियों को और अपने अंदाज को ज़िक्र फरमाया। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, इन तमाम तर लोगों ने इस चीज़ को ज़िक्र फरमाया। हज़रत हमज़ा और हज़रत अली ने भी अपने ख़यालात का इजहार फरमाया और बहुत ही अहसन अंदाज से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ग़ज़वा बदर के पहले शहीद वो कौन हैं। जब दोनों तरफ से जंगें हुई और जंग का माहौल गर्म हुआ तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुसलमानों की मदद फरमाई। कभी बारिश की सूरत में मदद फरमाई, कभी मुसलमानों को ऊँग दे दी, हत्ता कि ऊँग ऐसी ऊँग, नींद का ऐसा झटका लगा, मुसलमान फरमाते हैं कि हमारे हाथों से तलवारें गिरने के करीब थी। और कुफार पर इस चीज़ का भी रौब हुआ कि यहाँ से जंग चल रही है और मुसलमान इतने सुकून और आराम में हैं, और ये ऊँग दी क्यों। असल जंग का जो तरीक़ेकार होती है वो तरीक़ेकार ये होती है कि जंग के 3 टोले बनाए जाते हैं। एक टोला लड़ता है और एक टोला पीछे खड़ा होता है और एक टोला बैठा हुआ होता है। जब वो टोला लड़ने वाला जब थक जाता है, ज़ख्मी होता है, पीछे जाता है, जो पीछे खड़ा हुआ होता है वो आगे आता है, जो बैठा होता है वो फिर पीछे बैक में खड़ा हो जाता है। पर मुसलमानों की तादाद ही 313 थी, उनके पास न पीछे बैठने वाले थे न पीछे खड़े होने वाले थे। थक जो गए तो थकावट अल्लाह ने नींद के ज़रिए से ख़त्म कर दी और वो दोबारा ऐसे लड़े गोया कि ताज़ा दम फ़ौज ने हमला कर दिया है। तो इस तरीके से कुफ़ार की नींदें हराम हो गई और अल्लाह ने कभी इस तरीके से मदद की कि आसमान से फ़रिश्ते नाजिल फरमाए, और फ़रिश्ते नाजिल हुए और नाजिल होते हुए देखे भी कुफ़ार ने, उसका भी रौब हुआ। अब ये कैसे पता पड़ा कि मुसलमानों की मदद में फ़रिश्ते नाजिल हुए? ये ऐसे पता पड़ा कि जो कुफ़ार के लश्कर में लोग मौजूद थे और बाद में मुसलमान हुए, मुसलमान होने के बाद उन्होंने जंग बदर का वाक़या ज़िक्र किया और बताया कि इस तरीके से फ़रिश्ते सफ़ेद पोश, सफ़ेद दाढ़ियाँ और सफ़ेद पटकू और बड़ी सफ़ेद चमकीली तलवारों और सफ़ेद घोड़ों पर नाज़िल हुए। बहरहाल तो इसके अंदर जो पहले शहीद हुए हैं वो शहीद कौन से सहाबी हुए हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चलो बढ़ो इस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीनों के बराबर है। मुसलमानों को बारने के लिए इस तरह फरमाया। उमैर बिन हम्माम ने ये जुमला सुना तो अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, वो जन्नत आसमान और ज़मीन के बराबर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ। कहने लगे, वाह वाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये बात क्या कह रहे हो? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, और कोई बात नहीं, ये मैं सिर्फ इस ख्याल से कह रहा हूँ कि शायद मेरी किस्मत में भी ये जन्नत हो। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ तुम्हें ये जन्नत नसीब होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशारत फरमाया। इसके बाद उन्होंने अपने तरकश से कुछ खजूरें निकाली और खाने लगे। फिर अचानक कहने लगे, अगर मैंने इन खजूरों के ख़त्म करने का इंतज़ार किया तो बहुत देर लगा दूंगा, इतना जीने के ताब नहीं। ये कहकर जो खजूरें रह गई थी फेंक दी और मैदान जंग में कूद पड़े। बिलाखिर शहादत से सरफराज हुए और ग़ज़वा बदर के पहले शहीद हज़रत उमैर बिन हम्माम हैं। हज़रत उमैर बिन हम्माम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस वाक़े से हमें ये चीज़ मिलती है कि वो शौक़ शहादत में इतने लबरेज़ थे कि हुजूर का ये फरमान सुन लिया कि जन्नत इतनी बड़ी है, हुजूर ने बशारत फरमा दी, तो उसके बाद खजूरें खाना भी उनको अच्छा नहीं लग रही थी। खजूरें खाते हुए वो भी छोड़ के चले गए और शहादत नसीब हो गई। इस तरीके से
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के 14 सहाबा इकराम जंग बदर के अंदर शहीद हुए हैं और कुफार की तरफ से 70 कत्ल हुए, 70 ही गिरफ्तार हुए और बाद में उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से आज़ादी मिली। पर बहरहाल मुसलमानों की इस जंग के अंदर बहुत ही अजीम तरीन फतह नसीब हुई है, बड़ी अजीम तरीन फतह, थोड़े तादाद में पर फतह बहुत। इससे हमें बहुत सारे असबाक जंग बदर से मिलते हैं, फिर तफसीली इंशाअल्लाह किसी और क्लिप में बयान होगा। पर इससे जो असबाक मालूम हो रहे हैं, सबसे पहला सबक ये है कि जंग बदर पहली जंग और वो जंग भी रमज़ान के महीने में। ये उन लोगों के लिए सबक है जो लोग कहते हैं कि हाय हम तो मजदूरी करते हैं, हाय हमारा तो फलां काम है, रमज़ान गर्मियों में आ गया, फलां हो गया, फलां हो गया, हम तो रोज़े नहीं रख सकते हैं। पर सहाबा इकराम ने उनको ये बतला दिया कि हम रोज़े भी रखते हैं, रमज़ान का महीना भी है और जिहाद भी करते हैं। ये सहाबा इकराम का ईमान है। और इसी तरीके से सहाबा इकराम ने मुख्तलिफ गज़वात के अंदर शिरकत फरमाई। सहाबा इकराम ने दीन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। और इंशाअल्लाह आइंदा एक क्लिप आएगी जिसमें जंग बदर के अंदर जो शुरका हुए, शरीक हुए सहाबा इकराम, उनके अस्माए ग्रामी आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी सहाबा इकराम की तरह ईमानी गैरत और जुर्रत नसीब फरमाए, दीन के लिए कुर्बान होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना।